Hello everyone. I, Dr. Manali Kankar, working as Assistant Professor in the Department of ABST, welcomes you all in the Kanadia PG Mahila Mahavidyalaya Digital Learning Platform. Today we are going to discuss about difference between management accounting, financial accounting and cost management. The learning outcomes of the presentation will be at the end of the presentation, you will be able to know about the meaning of management accounting, financial accounting, and cost accounting, and will also be able to know the difference among all these three accountings. So, let's start. Management accounting. The first topic is management accounting. Now, what is management accounting? As we all know, the accounting for management is management accounting. It can be said as a service function which presents facts, which lays emphasis on future. It can be said as integrated system which is based on selection and studies. It studies cause and effect relationship. As we know that the rules are definite and it actually studies non-monetary variables also along with the monetary variables. So management accounting, we can say any form of accounting which enables a business to be conducted more efficiently can be regarded as management accounting. In management accounting, the important information is all the way collected from the financial books and other sources, and these informations are classified, analyzed for the management, which helps the management in the function of planning, organizing, staffing, directing, and controlling. Management accounting actually provides us information, or can say that it provides information to the management which can be used by the management to increase the efficiency of the business. It's related to the product or to the particular department, can be said, or we can also say that it actually differs from the financial accounting. Next is financial accounting. Financial accounting is the part which is included in management accounting. We all know that financial accounting, the transactions of the business are systematically recorded, classified, and summarized, and in the form of profit and loss account or balance sheet. And these financial statements are the stones on which whole management accounting is based. These are analyzed and interpreted, and every information useful to management flows from them. So, basically, we can say that management accounting cannot exist without financial accounting. Financial accounting is, we know that it is based on accepted principles, it has a single unified structure, it is mandatory for each and every business to conduct financial accounting. Financial accounting, we can say as historical accounting also the financial accounting, and as we know that it is based on the accepted principles and find out the profit and loss of the year and also the financial position of the business on the particular date. So, and all the business transactions which are recorded in the books of financial accounting are transactions are in the chronological order, are done in the chronological order. It shows the financial position of the company, as I told you earlier, and it is useful for external users also. It is related to the whole business. Next is cost accounting. Cost accounting is related to the cost of goods, or is related to the manufacturing firm, or we can say for the cost accounting. mm, Due to limitations and completeness of financial accounting, a separate system of accounting was evolved, which was related to cost related matters and all. So that accounting system was known as cost accounting. So, cost accounting means the application of costing and cost accounting principles or techniques, can say methods of cost and practice of cost control and ascertainment of profit. This includes presentation of information derived for the purpose of managerial decision making, and also
तो कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली हमको हेल्प करती है कॉस्ट कंट्रोल करने में, और जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ है उनके अंदर एफिशिएंसी को लाने में हमें कॉस्ट अकाउंटिंग इंक्रीज करती है। ये जो अकाउंटिंग प्रोसीजर है ये इट इज़ मोर फॉरवर्ड लुकिंग और डायनामिक एज कंपैरेटिबल टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन ऑल। लेटेस्ट टेक्निक्स जो हैं लाइक बजटरी कंट्रोल, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, मार्जिनल कॉस्टिंग, और ये सब जो होती हैं ये सारी टेक्निक्स, दीज ऑल टेक्निक्स आर यूज्ड इन कॉस्ट अकाउंटिंग। इसके अलावा इन कॉस्ट अकाउंटिंग मॉनेटरी फैक्ट्स आर डिस्कस्ड एंड द फैक्ट्स विच आर डिस्कस्ड आर यूज्ड बाय द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल पार्टीज। इट इज़ एक्चुअली द गिफ्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग जो होती है ये मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स की होती है, तो एट अ टाइम ऑफ प्रोडक्शन के टाइम पर हमें पता होना चाहिए कि हमारा प्रोडक्शन कितना होता है, हमारे वर्कर्स, हमारे लेबर्स, हमारी जो इंडस्ट्री है वो कितने एफिशिएंटली वर्क कर रही है। तो उस एफिशिएंसी को असरटेन करने के लिए ही हम कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं, नॉट असरटेन करने के लिए, बेसिकली उस एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए अकाउंटिंग करी जाती है। अकाउंटिंग से रिजल्ट्स पता लगता है, उसके अकॉर्डिंग हम हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। So next is, here is the difference between management accounting and financial accounting. So let's start. Before starting, I would like to tell you that as we know that purpose of financial accounting is recording, classifying, and briefing and all. And for the purpose management accounting, it's the management. It helps the management in the function of planning, organizing, and all. So, financial accounting is included in the management accounting, and both use almost same kind of informations. But then also they are complementary to each other. But then also there are some differences which can be classified into these bases. So, first difference is objective. मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है टू प्रोवाइड सच इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट जो कि मैनेजमेंट यूज में ले सके अपनी बिजनेस की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए। अपोजिट टू दैट फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होता है ये एक तरह से इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि जो रिकॉर्ड्स होते हैं, जो बिजनेस के ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड्स हैं, उनको क्रोनोलॉजिकली रिकॉर्ड करना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना और एक पर्टिकुलर डेट पर अपनी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को डिस्क्लोज करना, डिस्प्ले करना। सेकेंड पॉइंट इज एरिया। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो एरिया होता है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, कंट्रोल अकाउंटिंग, डिसीजन अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स आती है, स्टैटिस्टिक्स आती है, बहुत कुछ आता है। इंस्टेड जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है उसके अंदर वो सब चीज़ें नहीं आती हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो स्कोप एरिया होता है वो बहुत कम होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग से। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बहुत वाइडर स्कोप होता है, वाइडर एरिया होता है। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो होती है दैट इज गिवन और डिस्क्लोज ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट नीड्स एंड थॉट्स। मैनेजमेंट क्या सोचता है, मैनेजमेंट को क्या ज़रूरत है मैनेजमेंट को, उसके अकॉर्डिंग इनकी मतलब इसका कोई पर्टिकुलर कोई अपने प्रिंसिपल्स नहीं होते हैं। मैनेजमेंट की जो नीड होती है उनकी जो यूटिलिटी होती है उसके अकॉर्डिंग जो इन्फॉर्मेशन होती है, अकाउंट्स होती है, उनका फॉर्मेट रेडी होता है। और अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करते हैं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है दैट इज रिलेटेड टू द फाइनेंस and the financial records are maintained according to the generally accepted principles, which are also known as GAAP. Next point is nature. जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है ये बेसिकली प्रोजेक्शन से रिलेटेड है, मतलब कि इसमें जो पुराना वाला जो डेटा होता है, जो फैक्ट्स होता है, उनका यूज़ उसी लिमिट तक होता है जहाँ तक कि वो बिज़नेस की फ्यूचर जो सिचुएशन है उसको इफ़ेक्ट करते हैं, उसके अलावा वो यूज़ नहीं होता है। और इसके अलावा जो फाइनेंशियल
हमारा इसके अलावा फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है, दिस इज हिस्टोरिकल इन नेचर और एक्चुअल डेटा इज यूज्ड इन द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मतलब ये उन बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का अकाउंट्स होते हैं, उन ट्रांजेक्शन्स का लेखा होता है जो ओरिजिनल में हो गए हैं और उनकी ओरिजिनल जो अमाउंट है उनका यूज़ किया जाता है वहाँ पर। नेक्स्ट इज यूटिलिटी। अगर यूटिलिटी की बात करते हैं तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ यूज्ड बाय द मैनेजमेंट अपने वर्क को यूज़ में लेने के लिए, अपने वर्क को कैरी आउट करने के लिए। तो मेन क्वेश्चन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग आता है कि क्या वो इन्फॉर्मेशन जो है, जो भी हमको मिल रही है, क्या ये इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट काम के लिए ज़रूरी है, मैनेजमेंट वर्क के लिए ज़रूरी है। तो जो भी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है, मैनेजमेंट के लिए नीडेड है, वो सारी इंफॉर्मेशंस यहाँ पर आती है, इसके अंदर आती है। इसके अलावा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए कह सकते हैं कि इट इज़ यूज़फुल टू एक्सटर्नल यूज़र्स, जैसे कि शेयर होल्डर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गया, गवर्नमेंट हो गई और इंस्टीट्यूशंस हो गए। नेक्स्ट इज़ फॉर्म। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए कोई स्पेसिफिक फॉर्म नहीं दे रखा है उसकी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के लिए, ये रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बना दिया जाता है। वेरएज जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, इसका जो फॉर्मेट है दैट इज प्रिपेयर्ड बाय द जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स ओनली, तो उसी के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मेट होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज सब्जेक्ट। तो जब हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट और कभी कभी कुछ पूरे डिपार्टमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हमेशा पूरे ही डिपार्टमेंट से, पूरे ही बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आती है, और जो मैनेजर अकाउंट्स होते हैं उनका preparation of managerial accounts information is done on the basis of department only. तो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है दैट इज रिलेटेड टू द बिजनेस, दैट इज रिलेटेड टू द बिजनेस ऑफ द कंपनी। ये भी कह सकते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो भी कुछ मैटर होता है वो सब चीज़ें टोटल जो उनकी वर्क की एफिशिएंसी है उसका एस्टिमेट किया जाता है। नेक्स्ट इज रिपोर्ट। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग, क्योंकि हमें पता है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजर्स हैं उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है, तो जो भी इंफॉर्मेशन हमें फाइनेंशियल अकाउंट से मिलती है दैट इज़ फॉर द एक्सटर्नल पार्टीज होती है, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग के जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इंटरनल मैनेजर्स जो होते हैं इंटरनल यूज़ के लिए ही यूज़ में लेते हैं। जबकि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होता है उसका काम होता है शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, जो हमारे अभी जो आप लोगों को बताया था कि एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं जैसे कि शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट और जो भी दूसरे बाहर के जो यूजर्स आउटसाइडर्स होते हैं, उनको फाइनेंशियल बिजनेस की फाइनेंशियल सिचुएशन, फाइनेंशियल साउंडनेस और बिजनेस की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको दिखाने के लिए काम में आता है। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड के अंदर बात करते हैं तो जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी डिटेल्स होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर दैट आर प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरनल यूजर्स ओनली एज वी नो। तो जो स्टैंडर्ड्स होते हैं दे आर डिसाइडेड बाय द इंटरनल मैनेजमेंट ओनली, और वो एक्चुअली में टाइम टू टाइम चेंज हो सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और सर्कमस्टेंसेस और सिचुएशंस के अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम चेंज हो सकते हैं। जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो एक्सटर्नल सोर्सेज को दी जाती है, तो इसलिए जो स्टेटमेंट्स होते हैं दोज आर प्रिपेयर्ड जो कि एक्सटर्नल पार्टी स्टैंडर्ड सेट करती है उनके बिहाफ पर प्रिपेयर करे जाते हैं, उनके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करे जाते हैं। नेक्स्ट इज मैंडेशन। जब मैंडेशन की बात करते हैं इट इज़ कंपल्सरी फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू कीप फाइनेंशियल अकाउंट्स, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो होती है वो इम्पॉर्टेंट नहीं होती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ नॉट मैंडेटरी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो होता है सिर्फ इसलिए होता है कि जो बेनिफिट्स हमें मिल रहे हैं, जो हमें पता लग रहा है बेनिफिट्स पता लग रहे हैं
वो कॉस्ट से ज़्यादा है या नहीं है, मतलब एफिशिएंसी हमारी इंक्रीज है या नहीं है। पीरियड की अगर बात करते हैं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होता है ये एक पूरा ऑपरेटिंग साइकिल से रिलेटेड होता है, मतलब पूरे एक साल से रिलेटेड होता है। और जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की रिपोर्ट्स वगैरह जो होती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कुछ भी डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, डेटा प्रिपेयर करता है, वो टाइम टू टाइम के लिए होता है। नेक्स्ट इज कैरेक्टर। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फोकस दिया जाता है यूजफुलनेस और रिपोर्ट्स की प्रैक्टिबिलिटी पे, ना मतलब इतना मॉनेटरी टर्म्स के ऊपर इतना नहीं दिया जाता है फोकस जितना कि उसकी प्रैक्टिबिलिटी ऑफ रिपोर्ट्स पे दिया जाता है, और उनको सब्जेक्टिवली यूज़ किया जाता है। जबकि जो इन्फॉर्मेशन होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जो हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है उसका एम्फेसिस होता है, मतलब उसका ज़्यादा जोर दिया जाता है मॉनेटरी टर्म्स पर, उसकी एब्सोल्यूटनेस पर, उसकी ऑब्जेक्टिविटी पर, और ऐसी वैलिडिटी पर कि जिस पर कि पीपल ज़्यादा से ज़्यादा रिलाय हो सके उस कंपनी पर, उस बिजनेस पर। नेक्स्ट इज इनकर्ड कॉस्ट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हर तरह की जो कॉस्ट होती है उसके ऊपर डिस्कस किया जाता है, मतलब कि बिजनेस के अंदर जो ओनर होता है, ओनर की हर एक कॉस्ट को उसकी टोटल कॉस्ट में ऐड करा जाता है, जबकि मतलब इंक्लूड करा जाता है। जबकि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है उसमें ओरिजिनल जो बिजनेस के जो एक्सपेंसेस होते हैं उन्हीं पर फोकस करा जाता है। बिजनेस का जो ओनर होता है उसके खुद के जो पर्सनल रिकॉर्ड्स होते हैं वो उसके अंदर नहीं आते हैं। नेक्स्ट इज डिस्क्रिप्शन। अगर डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी दोनों तरह की जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं, दोनों तरह के इवेंट्स होते हैं, उनको इंक्लूड करा जाता है, जो कि बिजनेस की मैनेजमेंट जो एक्टिविटीज़ हैं उनको इफ़ेक्ट करते हैं। नॉन मॉनेटरी जो इवेंट्स होते हैं उनमें उनके अंदर जैसे कि टेक्निकल चेंजेस होते हैं, या मार्केट के अंदर जो कंपटीशन की सिचुएशन होती है वो, या जो कंज्यूमर्स होते हैं उनकी उनके इंटरेस्ट और उन सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है। और जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसमें केवल उन्हीं बिजनेस के ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स की बात करी जाती है जिनको कि मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज कम्युनिकेशन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर कम्युनिकेशन जो होता है वो बहुत फास्ट और बहुत छोटे छोटे पीरियड्स के अंदर होता है, क्योंकि यही इंफॉर्मेशंस होती हैं जिनके बेस पर जिनके बिहाफ पर मैनेजमेंट जो होता है वो अपने बिजनेस के लिए डिसीजंस ले सकते हैं, अपनी फ्यूचर फोरकास्टिंग के लिए डिसीजंस ले सकते हैं। जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग की अगर बात करते हैं तो ये इसमें इंफॉर्मेशन का जो कम्युनिकेशन होता है वो बहुत नॉर्मल होता है, बहुत धीरे होता है, क्योंकि जनरली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जो बैलेंस शीट होती है वो पूरे ईयर के बेस पर बनाई जाती है, और इनका जो प्रेजेंटेशन होता है वो ईयर एंडिंग के बाद में ही होता है। तो जो क्विकनेस होती है जो कम्युनिकेशन में वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नीडेड इतनी नहीं होती है। नेक्स्ट इज चेकिंग एंड एग्जामिनेशन। चेक एंड एग्जामिनेशन की अगर बात करते हैं तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में चेकिंग और एग्जामिनेशन जो होता है वो पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि जो फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं वो एस्टिमेटेड और प्रोजेक्टेड होते हैं, वो फ्यूचर से रिलेटेड होते हैं और पास्ट और प्रेजेंट से कम रिलेटेड होते हैं। तो जो एक तरह से इसका सिर्फ क्वालिटेटिव फैक्ट्स होते हैं जो कि ऑडिटेड नहीं करे जा सकते हैं, जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करके उनको चेक करना, एग्जामिन करना हो सकता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑडिट। नेक्स्ट इज पब्लिकेशन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर जो अकाउंट्स होते हैं दोज आर मेंटेन्ड फॉर द यूज़ ऑफ मैनेजमेंट ओनली, तो इनका पब्लिकेशन नहीं होता है। जबकि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है उसके अंदर कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग जो एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं वो एक उनकी एक कॉपी जो होती है वो रजिस्ट्रार को भेजनी मैंडेटरी होती है, इसलिए इनके पब्लिकेशंस होते हैं, और पब्लिक कंपनी के सिचुएशन के अंदर इसका पब्लिकेशन करवाना भी मैंडेटरी होता है।
इसके अलावा कुछ और छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि ऑडिटिंग की अगर हम बात करते हैं तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ऑडिटिंग नहीं होता है, जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ऑडिटिंग होता है। या हम अगर इसके मेथडोलॉजी की बात करते हैं तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर जो कॉस्ट होती है, जो इनके रिसिप्ट्स होती हैं, वो जो हमारे प्रॉफिट ओरिएंटेड होती हैं उन्हीं के बेस पर होती है। और जबकि अगर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करते हैं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जो फॉर्म्स होते हैं, जो तरीके होते हैं, वो इनकम एक्सपेंसेस या पर्सनल अकाउंट्स या हमारे एसेट्स वगैरह इन सब चीज़ों के अकॉर्डिंगली लिखे जाते हैं, इन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग बताए जाते हैं। After this, here is the difference between management accounting and cost accounting. हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बीच में तो हमने डिफरेंस पढ़ लिया। अब हम लोग को ये भी पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है, ये तो हर जगह ठीक है चलता है, लेकिन आप कॉस्ट रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं उसको आप कहाँ पर रिकॉर्ड करोगे, तो इसके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग बनाया गया था। तो ऑब्जेक्टिव जो होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की अगर हम बात करते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज द efficiency, managerial efficiency of the organization, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव इज टू असरटेन द कॉस्ट ऑफ गुड्स, या जो भी सर्विसेज हैं वो प्रोड्यूस करी गई है उन कॉस्ट को असरटेन करना होता है। सेकेंड पॉइंट इज कैरेक्टरिस्टिक्स। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज रिलेटेड टू द फ्यूचर या फ्यूचरिस्टिक जो डेटा होता है, फैक्ट्स होता है, उन सब चीज़ों से रिलेटेड होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और कॉस्ट अकाउंटिंग जो होता है ये प्रेजेंट या पास्ट फैक्ट से रिलेटेड होता है या हिस्टोरिकल फैक्ट से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट इज स्कोप। अगर हम स्कोप की बात करते हैं तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक पार्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। और क्योंकि आपको पहले बताया था कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप जो होता है वो बहुत ज़्यादा है, उसका एक्चुअली एक पार्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। और कॉस्ट अकाउंटिंग का स्कोप बहुत वाइडर नहीं होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कॉस्ट रिकॉर्ड्स आते हैं, कॉस्ट कंट्रोल आता है, कॉस्ट ट्रांजेक्शन्स वगैरह उनका सर्टेनमेंट करना, वही सब कुछ आता है। नेक्स्ट इज ओरिजिन। अब कॉस्ट अकाउंटिंग जो होता है वो और मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो होता है वो कैसे ओरिजिन हुआ, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो कंसेप्ट है वो कुछ सालों पहले ही आया है। पहले मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो था वो पूरी तरह से डेवलप नहीं था, और दिस इज लाइक अ न्यू कंसेप्ट और टेक्निकली जो कि अब ज़्यादा यूटिलाइज हो रही है। और अगर कॉस्ट अकाउंटिंग अकाउंटेंसी या कॉस्ट अकाउंटिंग का अगर बात करते हैं तो दैट इज़ अ गिफ्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये जो जैसे इंडस्ट्रीज जब आई थी तो इंडस्ट्रीज के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होती थी, उन मैन्युफैक्चरिंग की जो एस्टिमेशन होता है, मैन्युफैक्चरिंग की जो अकाउंटिंग होती थी, दैट वाज रिलेटेड टू कॉस्ट अकाउंटिंग। तो दैट वाज अ गिफ्ट फॉर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जब इंडस्ट्रीज आई उसके बाद में ही कॉस्ट अकाउंटिंग स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट इज डिस्क्रिप्शन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी दोनों चीज़ें आती हैं, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर सिर्फ मॉनेटरी जो वैल्यूज़ होती है, मॉनेटरी फैक्ट्स होते हैं, वही आते हैं। नेक्स्ट इज फॉर्मेट्स और कैन बी सेड एज प्रिंसिपल्स। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं होता है, ऐसा कोई प्रिंसिपल्स नहीं होते हैं। ये फॉर्मेट्स जो होते हैं, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, दीज आर मेड बाय द मैनेजमेंट ओनली, मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस ओनली। एंड कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कुछ पर्टिकुलर सेट होते हैं, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स होते हैं, फॉर्मेट्स होते हैं, कुछ कॉस्ट अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनके बिहाफ पर, उनके बेस पर ही अकाउंटिंग की जाती है। नेक्स्ट इज पार्टीज। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर जो फैक्ट्स होते हैं वो सिर्फ इंटरनल मैनेजमेंट तक ही रहते हैं, क्योंकि उनका कोई डिस्क्लोजर करने का कोई सेंस नहीं होता है, तो वो सिर्फ इंटरनल मैनेजमेंट तक ही रहते हैं, इंटरनल यूजर्स तक ही रहते हैं। जबकि जो कॉस्ट अकाउंटिंग होता है इसका जो यूटिलिटी होती है, इसको जो यूज़ लिए जाते हैं, इसके रिकॉर्ड्स, इसके डेटा, इसके फैक्ट्स को, वो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों पार्टीज उसके यूज़ में लेते हैं। So this was about the difference between management accounting and cost accounting.
आई विश कि आप सब लोगों को मैनेजमेंट अकाउंटिंग पता लग गई होगी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पता लग गई होगी, कॉस्ट अकाउंटिंग पता लग गई होगी, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग से किस तरह से फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग डिफर करती है वो भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।